Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 12, Sunlight and Shadows. So in this chapter we shall learn about the sun and the light and the shadows. How are the shadows formed and how does we see the different objects in our surroundings with the help of the light, and what are the characteristics of the sun, what are the luminous objects and what are the non-luminous objects, what are the sources that give us light and what are the sources that doesn't give us light. All these topics we will discuss in our chapter. Now let's begin the chapter. Chapter 12, Sunlight and Shadows. Get start. Take right the objects that give us light. Now students, look at the images and take those objects that give us light. Your first image is a candle. Candle give us light, so take the image. Next is desk. Desk doesn't give us light, so doesn't take. Next is sun. Sun is the ultimate source of heat and light, so take this image. Next is chair. Chair doesn't give us light. And now last is electric bulb. Electric bulb is also give us light, so take this image. Now students, let's read the chapter. We all need light to see various things. We cannot see in the dark. What sources of light do you use every day? बच्चों, हम आसपास की चीजों को लाइट की वजह से ही देख पाते हैं. आपने देखा होगा जिस रूम में जिस रीजन में लाइट नहीं होती, डार्कनेस होती है, वहां पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते. हम डिफरेंट लाइट सोर्सेस का यूज करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में. नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्ट विद द सन. The sun is the biggest source of light. It gives us heat and light. It rises in the east and sets in the west. बच्चों, सन जो है हमारा बिगेस्ट सोर्स है लाइट का अर्थ पे. बच्चों, हमें सन से, सूरज से गर्मी भी मिलती है और रोशनी भी मिलती है. सन जो है ईस्ट डायरेक्शन में राइज करता है और वेस्ट डायरेक्शन में सेट होता है. The light which we get from the sun help us to see the world around us during the day. बच्चों, जो हमें सूरज की रोशनी मिलती है उसी से तो हम दिन में सारी ही चीजों को देख पाते हैं. द सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. इट हेल्प्स दी प्लांट्स टू मेक फूड एंड ग्रो. बच्चों, हमारे जो सन है वो क्या अल्टीमेट सोर्स माना जाता है. सन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. सन की रोशनी की वजह से ही तो प्लांट्स क्या कर पाते हैं, फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं और ग्रो करते हैं. We all enjoy the sun's warmth on cold winter days. We see the sun rising from the east. When the sun rises in the morning, a new day begins. Now students, बच्चों, जब सर्दियों का मौसम आता है, विंटर सीजन आता है, तो हम सन की वार्मथ को इंजॉय करते हैं. और हमने देखा होगा सन जो राइज करता है वो ईस्ट डायरेक्शन से करता है. जब सन राइज करता है मॉर्निंग में, तब हमारा डे बिगिन होता है, मतलब दिन की शुरुआत होती है. The day ends with the sun sets in the west. After that, night begins to fall. There can be no life without the sun. जब हमारा सन सेट होना स्टार्ट हो जाता है और पूरा सन सेट हो जाता है, तब हमारा डे का एंड हो जाता है, जो वेस्ट डायरेक्शन में सन सेट होता है. बच्चों, फिर उसके बाद दोबारा से मॉर्निंग आती है, दोबारा से नाइट आती है. इसी तरीके से लाइफ साइकिल चलती है. देयर इज नो लाइफ पॉसिबल विदाउट दी सन. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट. The sun is about 1 million times bigger than the earth. सन का साइज कितना होता है बच्चों, अर्थ से 1 million times बड़ा होता है. Now students, pick up a jump and do this exercise and list the name of 5 objects that give out light. आपको 5 ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं जो हमारे लाइट सोर्स है. Now first is इलेक्ट्रिक बल्ब, और नेक्स्ट हम लिख सकते हैं सेकंड में सन, टॉर्च, कैंडल एंड ट्यूबलाइट. Now come to the next topic, light and shadow. When light falls on any object, it bounces off and reaches our eyes. बच्चों, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है, तब जाके हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. दिस हेल्प अस टू सी दी ऑब्जेक्ट. लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. आपको पता है लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट एंड लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, अ शैडो इज फॉर्म्ड. जब हमारी लाइट ट्रेवल कर रही होती है स्ट्रेट लाइन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट की वजह से उसका पाथ ब्लॉक हो जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की शेडो हमारी फॉर्म होने लग जाती है, जिसे हम परछाई कहते हैं. द शेडो इज
formed on the opposite side of the source of light. बच्चों जो हमारी शेडो परछाई फॉर्म होती है जो लाइट सोर्स है उसके अपोजिट साइड में फॉर्म होती है, डेट शोन इन द इमेज. नेक्स्ट टॉपिक इज लेंथ ऑफ अ शेडो. द लेंथ ऑफ अ शेडो इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. जो शेडो की लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, टाइम के अकॉर्डिंग होती है, वो कि हमारा लाइट सोर्स कितनी दूर है हमारे ऑब्जेक्ट से. When the position of the sun changes, there is a change in the size of a shadow. आपने देखा होगा जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती है वैसे वैसे हमारे शेडो का साइज भी चेंज होता रहता है. शेडोज आर लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. दे आर शॉर्टेस्ट एट मिड डे व्हेन द सन शाइन्स ओवरहेड. बच्चों आपने देखा है कभी दिन के समय और इवनिंग के समय हमारी शेडो सबसे ज्यादा लंबी होती है और हमारे नून आफ्टरनून के समय हमारी शेडो शॉर्ट हो जाती है क्योंकि हमारा सन जो है ओवरहेड आ जाता है, मतलब सर के ऊपर, जिस तरीके से आपको इमेज में शो कर रखा है. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी एन अमेजिंग फैक्ट. सनलाइट टेक्स अबाउट 8.3 मिनट्स टू रीच दी अर्थ. आपको पता है सूरज की रोशनी को अर्थ तक पहुंचने में 8.3 मिनट्स लगते हैं. नाउ स्टूडेंट्स कैन यू टेल वन क्वेश्चन. नेम एंड इंसेक्ट्स डेट गिव अस लाइट. बच्चों आपको एक इंसेक्ट का नेम बताना है जो लाइट देता है. ग्लोवॉर्म यानी जुगनू, उससे लाइट रिलीज होती है. नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज सन. दैट मीन्स द स्टार दैट शाइन्स इन द स्काई ड्यूरिंग द डे गिविंग द अर्थ हीट एंड लाइट. सन बच्चों एक स्टार होता है जो स्काई में चमकता है दिन के समय, जिससे गर्मी मिलती है और रोशनी मिलती है अर्थ प्लैनेट को. Next is shadow means a dark shape produced by a body coming between rays of light and a surface. Shadow एक dark shape होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हमारे लाइट रेज के बीच में आ जाती है और उस ऑब्जेक्ट की शेडो को फॉर्म करती है यानी परछाई. नेक्स्ट इज नून. 12 o'clock इन द मिडल ऑफ द डे. दोपहर के जब 12 बजते हैं उसे हम नून कहते हैं. नाउ लेट्स सी इन अ नटशेल. फर्स्ट पॉइंट, द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट. सन हमारा बिगेस्ट सोर्स होता है लाइट का. There can be no life without the sun. बच्चों कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है सन के बिना. लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. आपने समझा लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है जिसकी वजह से ही तो शेडो फॉर्म होती है. अ शेडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर. कभी भी बच्चों शेडो कलरफुल नहीं होगी, ब्लैक कलर की ही होती है. शेडोज आर दी शॉर्टेस्ट एट मिड डे. शेडोज जो है 12 o'clock पे शॉर्टेस्ट होती है, सबसे छोटी बनती है नून के समय. नाउ स्टूडेंट्स इट्स एक्सरसाइज टाइम. लेट्स डू एक्सरसाइज A. Take write the correct option. Now you can read this statement and choose the right one. First, the sun gave us. sun से हमें क्या मिलती है? Heat and light. So C both A and B is the right answer. We can see objects when there is. बच्चों हम objects कब देख सकते हैं? जब light होती है. B is the right answer. The sun rises in the east direction. A is the right answer. Light always travel in a straight line. C is the right answer. Now students, let's do exercise B. Fill in the blanks. Now you can fill up the blank space. First, we cannot see anything in the dark. हम darkness में कोई भी चीज नहीं देख पाते. Next, dash is the main source of dash on the earth. Sun is the main source of light on the earth. Next, the shadow is formed on the dash side of the light, opposite side. Next, shadows are dash in the morning and the evening. Shadows बड़ी होती हैं longest. The sun sets in the west direction. Now students, let's do next exercise. C. Write T for true and F for false statement. You can identify the true and false statements. First, the sun rises in the west. Sun rise करता है west direction में. No, it is false. The sun is the main source of light on earth. Yes, it is true. The night is cool and dark. Yes, it is true. Light travels always in a zigzag way. No, straight line में करती है light to travel. So it is false. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.